ठीक। शैलेंद्र, आपका सवाल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वहाँ पर जो चल रहे प्रोटेस्ट है उसको लेके था। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ पर हताहत हुए। उसके अलावा बहुत लोग को इंजरीज़ भी आई हैं। और पहले जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो आम चीज़ें हैं, आम वस्तुएं हैं रोज़मर्रा के, उस पर भी काफ़ी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर आवाम हैं, लोग हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडारिटी की ज़रूरत है और वो उनको मिलना चाहिए। Keshav, your question was regarding energy request that we have received. As I had said earlier also, that we have an ongoing energy cooperation with Bangladesh. As far as the additional request is concerned, we are examining this given our own requirements, given our refining capacity, as also the availability that is there on our side. On the other question was regarding development cooperation. So let me tell you that India desires positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interest and reciprocity. Okay, more? Brahm? मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है, आज यूपी जापान बिजनेस समिट भी हो रही है, उसको लेकर क्या विदेश मंत्रालय कुछ डिटेल उपलब्ध करा सकता है कि किन किन सेक्टर्स से लोग आए हैं? दूसरा सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सीईसी का नाम, ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कहा है कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है उसी तरह अमेरिका में भी चुनाव प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए वोटिंग सिस्टम में। तो ये सवाल इस परिप्रेक्ष्य में है कि जब ईवीएम को लेकर देश में सवाल खड़े होते रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता को लेकर अमेरिका इस बात का जिक्र कर रहा है और उस आधार पर बदलाव करने की बात कर रहा है, तो उसको विदेश मंत्रालय कैसे लेता है? थैंक यू। उमाशंकर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। मेरा सवाल ये है कि कल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के दिल्ली स्थित दूतावास में इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपना विक्ट्री डे समारोह मनाया, जिसमें कि हमारे जेएस पाई ने भी शिरकत किया। पीछे हमने देखा है कि कई सारे मंत्री तालिबान के भारत दौरे पर आ चुके हैं। हमारी तरफ से भी कई प्रतिनिधिमंडल जो है उच्च स्तरीय काबुल जा चुका है। सवाल ये है कि जब इस लेवल पे हम इंगेज कर रहे हैं तो एक मान्यता देने में क्या दिक्कत है, और क्या हमने इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जो मांग है तालिबान की सरकार से वो छोड़ दी है? Okay. Jugal. Hi, sir. Jugal from the Collective Newsroom for the BBC. There are reports which say that a United Nations Security Council report has expressed concerns about the Al-Qaeda in the Indian subcontinent trying to establish a base in Bangladesh. On the 5th of August, when Sheikh Hasina and her party did a press conference, her son also said that perhaps Bangladesh is sliding further into the ambit of terrorism. And recently it was reported that India's external agency, RAW's chief, was also in Bangladesh. I'm just trying to understand whether there is a conversation about the threat, security threat or terrorism between India and Bangladesh in the light of all these reported developments. Thank you. Ayushi. Sir, this is Ayushi Agarwal from ANI. I have a question on the Teesta issue. Bangladesh's minister has said that Dhaka does not want the Teesta issue to adversely affect the relationship with India, and the issue should be addressed separately. Just wanted to know, has Dhaka formally approached New Delhi for a fresh round of talks? What is our position on the issue? And since Bangladesh has also been exploring Chinese investments in the Teesta project, involvement in the Teesta project rather, has India conveyed any concerns to Dhaka? Huma. So I'm Huma Siddiqui from Strat News Global. I have two questions. One related to the women empowerment in Afghanistan under the Taliban 2.0. Has India raised this issue with the Taliban government? And my second question is, there are reports that ONGC is back in Venezuela. So how does India look at it that now that the Trump administration has lifted the sanctions, that means that each time they lift a sanction, then only we do business, or
we can go and do business or oil energy on our own? ओके सो ब्रह्म, पहला सवाल उत्तर प्रदेश और जापान के बीच में जो बिजनेस का आपने कहा शिखर वार्ता चल रहा है, उसको लेके मैं कहूँगा कि देखिए, भारत और जापान दोनों के बीच में ये हम लोग का प्रयास रहा है और प्रधानमंत्री के दौरे पर खास एक प्रयास किया गया था कि वहाँ के जितने गवर्नर्स हैं अलग अलग राज्यों के, उनसे मुलाकात हो, ताकि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार बीच में रिश्ता स्थापित है, मजबूत है और गहरा हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं चूँकि दोनों तरफ के राज्यों जो स्टेट है उनके बीच में भी इसी प्रकार से अगर रिश्ता बने तो जो हमारा जो इकोनॉमिक एजेंडा है, मैन्युफैक्चरिंग की बात है और भी अन्य चीज़ों की बात है, जहां इम्प्लीमेंटेशन होता है उससे उसमें और गति आएगी और तेज़ी आएगी। तो इन सब को लेकर जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो, आर्थिक सहयोग की बात हो, ये एक अच्छी बात है कि दोनों देशों के बीच में, राज्यों के बीच में सहमति बन रही है और आपस में वो लोग बातचीत कर रहे हैं और ये जो एजेंडा है उसको आगे ले जा रहे हैं। दूसरा सवाल था आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ये उनकी टिप्पणी को लेके था, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन टिप्पणियों पर मेरी कोई खास राय नहीं है। हालांकि मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भारत की चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता और मजबूती एक स्थापित तथ्य है जिससे पूरी दुनिया अवगत है। I have no specific comments to make on these remarks. I can say, however, that the credibility and robustness of India's election machinery is a well-established fact globally. अफ़गानिस्तान को लेके उमा आपका सवाल था। देखिए, अफ़गानिस्तान कल उन्होंने यहाँ पर अपना विक्ट्री डे आयोजन किया था, जिसमें हमारे, जैसा कि आपने बताया कि हमारे तरफ से हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो अफ़गानिस्तान को देखते हैं, उन्होंने हमारे तरफ से उन्होंने उनकी उपस्थिति हुई वहाँ पर भारत सरकार की तरफ से। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में एक बहुत पुराना रिश्ता है, जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ के लोगों के बीच में और हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं। पिछले कुछ महीनों में, सालों में, पिछले 1 सालों में खासकर आपने देखा हो कि इन रिश्तों में तेज़ी आई है। हम लोगों ने उनकी तरफ से कई एक मंत्रीगण हमारे यहाँ आए, साथ ही साथ हम लोगों ने उनको डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सहायता प्रदान की और साथ ही साथ मानवता आधारित सहायता भी हम उनको पहुंचाते रहे, जिसमें कि दवाइयाँ हैं, खाने की कुछ सामग्री है वगैरह वगैरह। इस प्रकार का जो हमारा उनके साथ साझेदारी चल रही है वो इसी प्राथमिकता के पर आधारित आगे बढ़ता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं 2025 के अक्टूबर में हम लोगों ने अपने जो हमारे वहाँ टेक्निकल मिशन काबुल है उसका स्तर बढ़ाकर उसको एम्बेसी का दर्जा दिया था और उस कारण से जो हमारे वहाँ पर टेक्निकल मिशन के जो चीफ थे, जो हेड थे, उनको हम लोगों ने चार्ज d'affaires का उनको दर्जा दिया, उनको पोजीशन दिया। और अभी इस मामले में जो अगर मेरे पास कोई और इसमें डेवलपमेंट होता है तो उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। Then like, share and subscribe to Mirror Now.